Hello, friends. How are you all? My name is Manika Gupta, and from now I will teach you maths of class 6th. So, I will teach you from this book. और ये book का नाम है Wow Maths and Term 1 book. Okay, let's start. So, the first chapter that I'm going to start is with fractions. Okay, so now today I will teach you fractions, and from today I will start uploading other chapter video as per your request. Okay, so let's get started. And first, if you like my channel, please like, share, subscribe, and also don't forget to click the bell icon so that you can always get an update when I upload a new video. So without wasting any time, let's get started. So, what do you know about fractions, friends? We know that fraction is something like it is made up of denominator and numerator. Numerator is a number like it is here. Wait a minute. Yes, it's 2 by 3. So what you will call it? It is a fraction, right? It is a fraction. What do you know about fraction? Fraction is a number, or is something that you can represent it as denominator and numerator. Like it is will be the numerator. It is a numerator, and it is a denominator. Right? So, it is made up of numerator and denominator. Fraction in our daily life, you come across many things. Like when you have a pizza. You like pizza, didn't you? You like na? So we have a pizza. It has 8 parts. We can cut it into 8 parts. Like it is like this. It is a pizza. We have cut it into many parts. Like this. Okay. Consider it to be a pizza. Okay. Like we have some parts like it is 8. Yes, so we have 8 parts here. Now if I say suppose you give 2 parts to your friend. Your friend came and asked you to give some pizza. So you give 2 parts. First part and second part. So what you will call this now? Now you don't have these parts. This you don't have. Now you have this part. This whole part. So, what you will call this? So yes, I was telling that you have given 2 pieces to your friends. So you will write it as 2 upon 8. Likewise, you have seen your marks. And out of 100 you will get 100 is a total, right? 100 is a total. And if you get 99, so you write it like this, right? आप इसे ऐसे लिखेंगे 99 हमारा न्यूमरेटर होगा और 100 हमारा डिनोमिनेटर होगा. तो जितना पार्ट हमने दिया है, समझिए 100 हमारा होल था, हमने 99 पार्ट किसी को दे दिया, तो हम वो लिख देंगे. ऐसे हम लोग जैसे आपको 100 मार्क्स का पूरा पेपर था और आपको 99 मिले तो आपने 99 अपॉन 100 लिखा. वैसे इसमें 8 टोटल पार्ट्स थे और 2 आपने दे दिए तो आप लिखेंगे 2 by 8. सो अब आपको एक फ्रैक्शन की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी. सो लेट्स start with the other thing. So in this book, in your book, it is written, a fraction is a part of a whole. A fraction consists of 2 quantities written one above the other that shows how much of a whole thing we have. Suppose we have 2 by 3 part of milk in a glass. So fraction of milk filled in the glass 2 by 3, which is the 2 is the numerator and 3 is the denominator. While writing a fraction, the denominator tells how many parts are there altogether. The numerator tells how many parts are counted. For example, a birthday cake is to be divided. I have taken the example of pizza, but here it is given birthday cake. So, fraction, the denominator tells how many parts are there. Yes. So I was telling that, for example, a birthday cake is to be divided into 8 people. So the fraction of the cake that each person is going to get will be 1 by 8.
In 1 by 8, 8 is the denominator, which means out of 8 pieces of whole cake and 1 piece which is the numerator will be given to each person. इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक केक था जिसके हमने 8 पीसेस करे, हाँ हमें सबको डिवाइड करना था इक्वली, तो हम इसका मतलब ये होगा कि हम 1 पीस सबको दे देंगे हाँ, तो 1 इसको हम लोग फ्रैक्शन में लिखने के लिए 1 by 8 लिखेंगे. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव हियर टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन and their conversions. अब यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? यूनिट फ्रैक्शन इज द वन इन विच द न्यूमरेटर इज ऑलवेज वन इरिस्पेक्टिव ऑफ द डिनोमिनेटर. हमें डिनोमिनेटर को नहीं देखना, डिनोमिनेटर बल्कि कुछ भी हो, हमें सिर्फ न्यूमरेटर देखना. न्यूमरेटर शुड बी वन, राइट? सो लाइक here it is given 1 by 2, 1 by 5, 1 by 10, 1 by 24, 1 by 100, 1 by thousands. So these are some examples given here. We can take any number, like you can take, wait a minute, yes, 1 by 8 you can take, 1 by 9 you can take 1 by 12 you can take 1 by 1000 you can take any number, 1 by like 10,000 you can take any number, any random number, but the numerator should be 1, right? Next, a fraction which is less than the whole or has smaller numerator than the denominator is called a proper fraction. Here 1 by 4, 2 by 4, 3 by 4 are proper fractions. So ये हमसे क्या कह रहे हैं? ये हमसे ये कह रहे हैं कि ऐसा फ्रैक्शन जिसमें which is less than the whole or has a smaller numerator than the denominator. होल यानी डिनोमिनेटर, होल डिनोमिनेटर होता है ना, क्योंकि होल मतलब होता है पूरा, और पूरा मतलब होता है हमारे ऐसे पूरे पार्ट्स, तो पूरे पार्ट्स नीचे दिए होते हैं यानी डिनोमिनेटर में दिए होते हैं. तो कोई भी ऐसा नंबर जो कि फ्रैक्शन हो और yeah, so I was saying like you have 8 in the denominator, and any number like a random number you can take. I have taken 2, so here it is 2 upon 8. So 2 is the numerator, right? 2 is the numerator and 8 is the denominator. Where it is saying that any fraction in which 2, which is the numerator or any numerator we can take, is smaller than the whole, that is the 8 denominator, is called a proper fraction, right? ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कह सकते हैं. ठीक है, अब हमने यूनिट फ्रैक्शन की भी बात करी है. आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ यूनिट फ्रैक्शन आई हैव गिवन, प्रॉपर फ्रैक्शन आई हैव गिवन, एंड नाउ वी कम टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. आई विल गिव यू द मीनिंग एंड द example of improper fraction. So like here it is given a fraction which is equal to or greater than wait a minute, yes, a fraction which is equal to or greater than 1 or has numerator equal to or greater than the denominator is called an improper fraction. Here are the examples given, that is 4 by 4, 5 by 4, 6 by 4, 7 by 4 and 8 by 4 are improper fractions, right? So I have written improper fraction. I am told that improper fraction is a fraction which is equal to be or greater than the one or has numerator equal to or greater than the denominator is called improper fraction. इसमें कहा गया है कि फ्रैक्शन जब हमें दिया गया है फ्रैक्शन, वो या तो इक्वल होना चाहिए और या तो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, विच मीन्स दैट, और या फिर ये भी कह सकते हैं कि इसका न्यूमरेटर जो है या तो इक्वल होना चाहिए डिनोमिनेटर के और या तो ग्रेटर होना चाहिए डिनोमिनेटर के. लाइक सपोज एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक इन दिस एग्जाम्पल दे हैव गिवन 4 by 4. सो आपने देखा कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम है कि नहीं. और 5 by 4 जिसमें से हमारा न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, इसमें हमारा न्यूमरेटर छोटा था और डिनोमिनेटर बड़ा था, राइट. और नेक्स्ट एग्जाम्पल है 6 by 4, इसमें से 6 बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है. 7 हमारा न्यूमरेटर है जो कि बड़ा है और 4 डिनोमिनेटर हमारा छोटा है. 8 न्यूमरेटर बड़ा है और 4 डिनोमिनेटर छोटा है. ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और यूनिट फ्रैक्शन क्या होते हैं. यूनिट फ्रैक्शन में हमारा न्यूमरेटर 1 होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारा न्यूमरेटर ज़्यादा होता है डिनोमिनेटर से, और प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारा न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, राइट. Okay, a fraction which is combination of a whole number and a proper fraction is called a mixed fraction. Here 1 whole 1 by 4, 1 whole 2 by 4, 1 whole 3 by 4 are mixed fraction. तो इसमें कहा गया है ऐसा फ्रैक्शन जो कि कॉम्बिनेशन है
होल नंबर का और प्रॉपर फ्रैक्शन का। प्रॉपर फ्रैक्शन अभी हमने क्या देखा, प्रॉपर फ्रैक्शन वह फ्रैक्शन होते हैं जिसमें से न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से छोटा होता है। जैसे कि इसमें दिया 2/4 छोटा है ना, 3/4 न्यूमरेटर छोटा है, 1/4 न्यूमरेटर छोटा है, और हमें यहाँ पे होल नंबर भी दिया हुआ है। होल नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर इसे कहते हैं। लेट्स सपोज हियर वी हैव टेकन 1 होल 1/2, सो होल नंबर ये होगा 1 होल, यानी कि पूरा 1 होल हमें कह सकते हैं एक पिज़्ज़ा पूरा हो। और देखो जैसे कि एक पिज़्ज़ा समझ लो 2 पार्ट्स थे, उसके 2 पार्ट्स थे, ठीक है। 2 में से एक तुमने अपने फ्रेंड को दे दिया, तो ये बचा हमारा एक पूरा पिज़्ज़ा। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2, एंड यहाँ पे हमें एक पिज़्ज़ा हमने फ्रेंड को दिया है तो हम लिखेंगे 1। पिज़्ज़ा दिया है और एक बचा हुआ है, ठीक है, तो वो लिखेंगे हम। तो 1, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 1 होल 1/2, राइट। 1 होल 1/2 वी कैन राइट। दिख नहीं रहा था, अब देखिए 1 होल 1/2। नेक्स्ट, इसमें यही कहने की कोशिश कर रहे हैं लोग, होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ मिक्स फ्रैक्शन, राइट। हेयर 1 होल 1/4, सो इसमें से 1 होल है हमारा पूरा एक चीज़ है। 1 होल मतलब कि पूरा पिज़्ज़ा, पूरा कुछ भी, तो 1 पूरा है, और उसके बाद 4 है जिनमें से एक पार्ट्स या हमने किसी को दे दिया है, ठीक है। और मिक्स फ्रैक्शन, conversion of fractions. An improper fraction can be expressed as a mixed fraction and a mixed fraction, and a mixed fraction can be expressed as an improper fraction, right? Mixed fraction to improper fraction. To convert a mixed fraction into improper fraction, we multiply the denominator with the whole part of mixed fraction and then add the numerator to it. हमने ये देखा कि मिक्स फ्रैक्शन क्या होते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि मिक्स फ्रैक्शन ये फ्रैक्शन होता है written as this form, right? written as this form. अब हमसे कह रहा है कि अगर हमें मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए कहा जाए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो प्लीज़ इसे देख लीजिए। मिक्स फ्रैक्शन दिया है, हम दूसरे पेज पे कर लेते हैं। ओके, सो वी विल डू इट हियर। हमें दिया गया है कि कन्वर्ट 3 होल 2/5 इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल 1 कर रहे हैं हम लोग। एग्जाम्पल 1, हमसे कहा गया है कि 3 होल 2/5 को हमें करना है किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है तो हम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना, हमें ये करना है कि हमें यहाँ से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ से ऐड करना है। वो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे 5 3 = 15, राइट। 15 + 2 यस 17। तो हमारा फ्रैक्शन कन्वर्ट हो गया है, मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। हमें तो ये पता ही है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर आपको चेक करना है कि आपने सही किया ये गलत, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको हमें ही पता है, अभी मैंने बताया आपको कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो हमारा न्यूमरेटर हमें डिनोमिनेटर से बड़ा मिल गया, इसका मतलब कि हमारा आंसर सही है, राइट। अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन। Improper fraction to mixed fraction. So to convert improper fraction to mixed fraction, we divide the numerator by denominator of the fraction. ठीक है, 7/4 is an improper fraction. Your friend. So I was telling that improper fraction to mixed fraction, how to convert it. First, you have seen that to convert a mixed fraction to improper fraction, what we did was that we have added the denominator and the whole, and we have multiplied the denominator and the whole, then we have added the number which you will get after multiplying the denominator and the mixed fraction, that we will add with the numerator. हमने क्या किया, हमने डिनोमिनेटर और होल को मल्टीप्लाई किया और उसके बाद जो आया हमारा आंसर उसे हमने ऐड कर दिया न्यूमरेटर में 2 में, तो हमें 17/5 मिल गया। ठीक है, तो अब हमने ये देखा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करेंगे। हमने स्टेप पढ़ लिया, अब नेक्स्ट चलो करते हैं एग्जाम्पल 2। ठीक है ना, तो हमें यहाँ पे दिया है 7/4 इज़ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एक्सप्रेस इट एज मिक्स फ्रैक्शन। हमें पता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, फिर से आई एम रिपीटिंग, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, राइट। इसमें हमें क्या दिया है, न्यूमरेटर हमारा 7 दिया है जो कि बड़ा है 4 से, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, राइट। सो हमें इसे मिक्स फ्रैक्शन में करना है। मिक्स फ्रैक्शन हमने अभी देखा, ये मिक्स फ्रैक्शन होता है, इस तरह के फॉर्म में हमने लिखना है। ठीक है, कन्वर्ट करना है मतलब।
तो अगर हमें ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया है, जैसे कि इसमें दिया है 7/4, तो 7/4 को हम लोग मल्टीप्लाई मतलब वो कैसे करेंगे कन्वर्ट। सो आपको ये पता है कि फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन डिवाइडेड फॉर्म में लिखा हुआ है। जब भी आपको ऐसी कोई चीज़ दी जाती है तो हम डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 7/4 दिया हुआ है, नथिंग, हमें कुछ नहीं करना, बस हमें डिवाइड करना है, ठीक है। 4/7 दिया है, अब हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 4 1 ज़ा 4, 7 ज़ा 4 जाता है तो 3 बचता है, राइट। सो अब हमें ये मिल गया, डिवाइड करने पर ये मिला, ये क्वेश्चन थे हमारा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, हमें ये जो ये रिमाइंडर है इसे ऊपर लेके जाना है। ऐसे एरो बना के दिखा सकते हैं आप, मैंने एरो बना के दिखाया है, आप भी ऐसे दिखाइएगा, ठीक है। ऐसे करेंगे, उसके बाद जो यहाँ रिमाइंडर है उसे ये बना देंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन को बगल में लाएंगे और 4 को नीचे लाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ गया मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में, राइट। हमें इसमें भी ऐसे दिया है 1/3/4 हमारा आंसर दिया है, ठीक है। तो अब हम ये भी सीख गए होंगे कि हमें इम्प्रॉपर को उसमें कैसे करना है मिक्स्ड में, और मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करना है, ये तो आपको आ गया, इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। तो चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पे हमें दिया गया है, देखिए यहाँ दिया है कि हमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट 48/7 इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन। अब ये आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसको आपको बिना देखे सॉल्व करना, राइट। 48/7 और एक और एग्जांपल ले लीजिए 68/2। अब वीडियो पॉज करिए और इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करिए, और फिर उसके बाद जब आई विल एक्सप्लेन यू द आंसर यू विल चेक योर आंसर्स, राइट। I think you must have solved the answer, right? You have must solve the problem, right? So आंसर आप डिस्कस कर लेते हैं क्या है इसका। मैंने आपको दिया था 48/7 को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए, राइट। हमने अभी क्या देखा कि जब भी हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है तो हमें मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, देखिए 7/48 दिया है, अब 7 की टेबल काउंट करना स्टार्ट करिए, 7 की टेबल रिसाइड करिए, 7 40 21 28 35 42, ठीक है। ओके, सो वी हैव गॉट 7 6 वी विल डू, राइट। 7 6 वी विल डू, you may do the problem before me, and after that you can check your answers, right? Yes, so I was doing this, yes, 42, ठीक है। अब आप इसको माइनस करिए, इसको ऐसे ऊपर लेके जाइए नीचे, और ये नीचे ऐसे एरो बना के करा, सब ने कर लिया, ओके वेरी गुड, यू गेट 6 ऊपर गया, 6 बगल में गया और 7 नीचे आया। लेट्स चेक आवर आंसर, 6 और 6/7, ठीक है ना। समझ गए आप लोग कैसे करना है। डिवाइज़र यहाँ हो गया, रिमाइंडर यहाँ, वो सॉरी हमने रिमाइंडर को ऊपर लेके गए, क्वेश्चन को डिवाइज़र की जगह पे लेकर आए और डिवाइज़र को हमने रिमाइंडर की जगह रखा, ओके। सो वी विल गेट दिस आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ दैट I have given you the question, it is not given in your book, but I have myself given you this question. After that you will solve this one. 68/2 it is, 62 nahi, 68/2 it is given, right. 68/2 it is given, so we have to convert it into mixed fraction, and then again you pause the video, then again you solve the question, and then you check the answer, right. 2/68, 2 divided by 68, so 2 3 are 6, 2 8 are 2 4 is 8. You may get the answer like this, right? So इसके लिए हमें क्या करना होगा, 0 हमारे ऊपर जाएगा, चाहे अगर 0 भी आ रहा होगा तो भी वो ऊपर चला जाएगा, राइट। कुछ भी आ रहा हो, इसमें तो हमें ऐसा नंबर दिया था जो डिविजिबल नहीं हो जाता 7 से, लेकिन इसमें मैंने ऐसा नंबर दिया है जिसमें कि 68 2 से डिविजिबल है, राइट। सो हमें मिल रहा है 0, तो हम लिखेंगे 0 डिवाइडेड बाय, डिवाइज़र विल भी हमारा क्वेश्चन यहाँ जाएगा तो डिवाइज़र बन जाएगा 34, और फिर 2 नीचे चला जाएगा, तो ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। अंडरस्टूड। चलो अब नेक्स्ट चीज़ पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें दिया गया है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/3।
हमें इसकी डेफिनेशन भी दी गई है. Two fractions are equivalent if the product of the numerator of the first and the denominator of the second fraction is equal to the product of the denominator of the first and the numerator of the second. हमसे ये कहा गया है कि अगर फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर और सेकेंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का अगर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट सेम आता है तो वह फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है. फॉर एग्जांपल, ये थोड़ा सा ट्विस्टिंग लगेगा आपको, तो इसे आप जैसा अटेंशन दीजिएगा. लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू. इसमें कहा गया है, इसमें एग्जांपल उन्होंने दिया है 1/3 एंड 2/6 का एग्जांपल दिया है, राइट. इसका एग्जांपल दिया है. अब हमें इससे देखना है कि हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं. सिंपल है, कुछ नहीं करना, ठीक है. अब आपको इसको करने का ही मेथड है. वैसे तो मेथड दो हैं, लेकिन मैं आपको फर्स्ट मेथड बता रही हूँ, ठीक है. हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. अब क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर और सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट. तो हमें क्या करना होगा? अब हमने जब इसको ऐसे करेंगे तो इधर लिख देते हैं हम लोग, ठीक है. तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 6, ठीक है. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा आएगा 6. और हमने ये कहा था कि फर्स्ट फ्रैक्शन का अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेकेंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने पे जो प्रोडक्ट आता है, अगर वो फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर और सेकेंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के इक्वल है तो वह इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. और हमारा तो इक्वल आ रहा है 6. हमें ये पता है ना कि ये और ये इक्वल हैं, है ना. तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, राइट. अब इसको क्या कहते हैं? इस मेथड को कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड. इसके अलावा एक और मेथड भी होता है, लेकिन आपको ये मेथड ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि ये आपके कोर्स में और जैसे इस तरीके से आपके इसमें दिया गया है. तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं. इसके लिए हमें इसको स्टैंडर्ड मतलब रिड्यूस करना होगा. रिड्यूस करना कह सकते हैं. 2 × 2 2 3 × 6. अगर ये दोनों सेम है तो इट मीन्स दैट आवर फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट. दिस इज़ द शॉर्ट ट्रिक. लाइक यू कैन डू इट in some minutes, right, in some seconds I would say. इसको करने में टाइम लगेगा, लेकिन तो ऐसे ध्यान से करिएगा क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड आप पहली बार कर रहे होंगे तो शायद गलती हो सकती है. नेक्स्ट में करना है कि रिप्लेस हैश बाय द करेक्ट नंबर इन 4/7 इज इक्वल टू 16 तक, राइट, यूजिंग द क्रॉस प्रोडक्ट मेथड. इन्होंने भी फिर से क्रॉस प्रोडक्ट मेथड यूज़ किया है. वेट अ मिनट. हाँ, यहाँ पे करते हैं. इसमें क्रॉस प्रोडक्ट रिप्लेस, हमें इसको रिप्लेस करना है करेक्ट नंबर से. अब 4/7 इज इक्वल टू 16 हैशटैग दिया गया है. ये क्या है? इसे फाइंड करना है. ये हमारे लिए अननोन नंबर दिया हुआ है, राइट. तो हमने ये देखा, हमें ये फाइंड करना होगा कि क्या चीज़ दी हुई है. लेट सपोज आप ऐसे भी कर सकते हैं. देखिए 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16. 4 का वो आ रहा है. तो अब ये आप अगर 4 की टेबल में 4 टाइम्स करेंगे तो 16 आ रहा है. तो 7 की टेबल में भी 4 टाइम्स करना पड़ेगा क्योंकि हमसे कहा गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है. इक्विवेलेंट में दोनों इक्वल होंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल होंगे, राइट. मतलब हाँ, ऐसे ही होगा, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल कहने का ये मतलब है कि अगर 4 हमने 4 की टेबल में 4 टाइम्स 16 किया है तो 7 की टेबल में भी 4 टाइम्स ही करेंगे. आपने वो किया होगा जब असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग अभी करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जब हम जैसे कोई नंबर दिया है उससे हम इक्विवेलेंट में करने के लिए जो नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, वही नंबर से हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, राइट. तो इसमें हमें पहले क्योंकि हमें नीचे दिया नहीं है नंबर तो हमने पहले ऊपर किया 4 4 से 16. सो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी टेबल में से 4 दिया है तो 4 की टेबल में 16 कितनी टाइम्स आता है, राइट. तो इसमें 4 की टेबल में 4 टाइम्स 16 आता है. तो 7 की टेबल को भी हम लोग ऐसे करेंगे, 7 × 4 करेंगे तो 7 14 21 28. सो हमारा यहाँ ये जो नंबर होगा वो 28 होगा, ठीक है. और अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं. इस तरीके से देखिए
ऐसे किया, ठीक है। अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से कर रहे हैं हम लोग। तो हम जैसे नॉर्मल क्रॉस प्रोडक्ट के लिए ऐसे क्रॉस वो बनाते हैं, क्रॉस टाइप का एरोज बनाते हैं, वैसे ही बनाएंगे, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, 7 × 16 करिए, ठीक है, लिख दिया, और 4 नीचे यहाँ लिख दीजिए, राइट। ऐसे ही करना है, और हैशटैग यहाँ लिख दीजिए, हैशटैग ऐसे हो गया, ओके। क्योंकि यहाँ पे जो 2 नंबर दिए हैं वो यहाँ आ जाएंगे, और 4 जो यहाँ पे इसके साथ दिया होता, हम ऐसे करते हैं, देखिए मैं आपको ऐसे बताती हूँ, ऐसे नहीं बताना चाहिए, ऐसे बताना चाहिए। 4 × हैशटैग इज इक्वल टू 7 × 16। आपने ऐसे किया, आपने अभी देखा ना कि प्रोडक्ट्स को अगर इक्वल होते हैं तो फिर वो हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं। हमने इसको इस तरीके से लिख दिया, लेकिन हम इसका प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें यहाँ हैशटैग दिया है, यानी कि x दिया है, जो कि हमें पता नहीं है, नॉन वैल्यू है हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई में है, तो जब कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई में हो तो वो इक्वल टू के उधर साइड जाकर डिवाइड में हो जाती है। कोई चीज़ यहाँ पे प्लस में हो तो उधर जाके माइनस हो जाती है, कोई भी चीज़ डिवाइड में हो तो इक्वल टू के इधर साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, राइट। तो इसमें मल्टीप्लाई में दी हुई है, हमें कुछ नहीं सोचना, हमें सीधे इसको डिवाइड में लेके जाना है, सीधे डिवाइड होगा, हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। 4 × 4, 4 × 4 = 16। अब हमें पता चल गया, ये भी इसी तरीके से किया जा सकता है, जैसे मैंने बताया उस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी करा जा सकता है। अगर आपको आंसर नहीं आ रहा, आपको नहीं पता चल रहा है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, राइट, ओके। हाँ, तो हमने इस तरीके से किया है। और जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको इस तरीके का सॉल्व करने को आपको इन्वर्स वेरिएशन में मिलेगा। डायरेक्ट इन्वर्स वेरिएशन में आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो हमने ये सॉल्व किया और हमारा आंसर इसकी तरह सेम आ रहा है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 4/7 इज इक्वल टू 16/28, राइट, लिख दिया, ओके, यस। सो अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। हमें दिया गया लाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। Here 1/9, 4/9 and 5/9 are like fractions as their denominators are same, that is 9. अब आप ये जानते हैं लाइक क्या होता है, हम लोग कहते हैं लाइक दिस, लाइक दैट, लाइक दिस, मतलब उसकी तरह, तरह मतलब सेम, और तरह यानी सारे सेम वाले फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर, जैसे कि इसमें देख सकते हैं 1/9, 4/9, 5/9, ठीक है। 1/9 और 4/9, 5/9 में सेम डिनोमिनेटर है कि नहीं, है ना। तो डिनोमिनेटर सेम है तो हमारे लाइक फ्रैक्शन होंगे, राइट। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो लाइक फ्रैक्शन, लाइक मतलब सेम, और डिनोमिनेटर हमारे सेम है तो लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। हियर 2/9, 1/3, 1/4, ठीक है, are unlike fraction as the denominators are different, that is 9, 3 and 4. unlike fraction मतलब जो कि सेम ना हो, राइट। अब हमने यहाँ दिया है 9, 3, 4, तो डिनोमिनेटर डिफरेंट है, यानी कि डिफरेंट है, लाइक नहीं है, तो यानी कि अनलाइक फ्रैक्शन है, अनलाइक है, अनलाइक फ्रैक्शन। सो ये हमारे अनलाइक फ्रैक्शन हुए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, कन्वर्ट। अब देखो कन्वर्जन करना है अनलाइक फ्रैक्शन टू लाइक फ्रैक्शन, और इसके लिए करने के लिए हम क्या करेंगे, टू कन्वर्ट अनलाइक फ्रैक्शन टू लाइक फ्रैक्शन फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स ऑफ ऑल द गिवन फ्रैक्शन, ठीक है। चेंज ईच ऑफ द गिवन फ्रैक्शन इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखा मैंने आपसे कहा था ना असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, या कि जैसे कि हम लोग एलसीएम लेके कर रहे हैं, तो अभी इसमें ऐसे करा है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर जब आपके इसमें आएगा तो आपको इसी तरीके से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करके आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पता चल जाएगा। इसमें हमने इस तरीके से पता किया है, ठीक है ना। एलसीएम इसमें भी लिया है, इसमें भी ऐसे करेंगे, लेकिन इसमें हमें असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं, अनलाइक को लाइक में चेंज करना है। फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर फॉर द गिवन फ्रैक्शन, चेंज ईच ऑफ द गिवन फ्रैक्शन इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैविंग डिनोमिनेटर्स इक्वल टू द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। Convert the fraction 3/4, 5/6, 1/12 into like fractions. First find the LCM of all three denominators, ठीक है, लिख लेते हैं। हमें कहा गया है कि शायद आपको दिख रहा हो, हाँ, तो एग्जाम्पल नंबर है 6। एग्जाम्पल 6 है और हमें दिए गए फ्रैक्शंस 3/4, 5/6
1/12। इसे हमें किस में चेंज करना है, इन सबको अनलाइक टू लाइक करना है, राइट, अनलाइक टू लाइक फ्रैक्शन। राइटिंग में मत जाइएगा, राइटिंग ठीक है, बस समझिए कैसे करना है इसे, ठीक है। राइटिंग मेरी थोड़ी बुरी है, थोड़ी नहीं मतलब बहुत ही सड़ी है, लेकिन आप उसको देखिए स्टेप्स को। इसके लिए क्या करना है, कन्वर्ट द फ्रैक्शन। अब इसमें हमें कहा गया एलसीएम लेना। एलसीएम लेना सबको आता होगा ना, एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, राइट, सॉरी एलसीएम का मतलब होता है सॉरी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट। 4/6 4 6 12, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 6 are 12, 2 1s are 2, 3 ऐसे लिख देंगे, 2 3 are 6 और फिर 3 1s are 1s are 1s are, ठीक। 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख देते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 2 6 इंटू 12 आ गए। अब हम कुछ नहीं करेंगे, जस्ट हमारा आंसर आ चुका है, हम इस तरीके से करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, बहुत ही आसान तरीका है, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। ऐसे लिखा, एक लाइन बड़ी एक लाइन छोटी, यहाँ पर जो हमारा एलसीएम है वो लिख देंगे। अब 4 को 12 बनाने के लिए क्या करा जा सकता है, 4 को 12 से बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, 4 3 से 12 होता है, हमें पता है ना, 4 3 से 12 होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको देखना है गैप कितना है, 4 4 से 16 होता है ना, 4 को 16 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, 4 इंटू 4 कर सकते हैं, राइट। इसको 12 बनाने के लिए कर सकते हैं, 4 इंटू 3 कर सकते हैं, तो हम 4 इंटू 3 करेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आ रहे हैं, ठीक है, राइट। हमें इस तरीके से भी कर सकते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आने के लिए, लेकिन आई थिंक इसको हम इस वाले मेथड में अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें इतने सारे अनलाइक फ्रैक्शन दिए थे तो हमने इस तरीके से कर लिया। लेकिन अगर एक फ्रैक्शन दिया है और हमें ये पता करना है कि वो, हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि उस वाले तरीके में जिसके पहले हमने किया था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो हमें 2 फ्रैक्शंस दिए हुए थे, आप उसमें भी ये मेथड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आई सजेस्ट टू यूज़ द मेथड दैट आई टोल्ड यू, और द स्टैंडर्ड फॉर्म यू कैन ऑल्सो यूज़, बट अगर आप उस मेथड से करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, और इस वाले में इस तरीके से करिएगा। एलसीएम लिया, 12 लिखा, 4 3 से 12, अब जिस नंबर से हमने नीचे मल्टीप्लाई किया है उसी नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैंने इसमें कहा था 4 4 से 16, तो हमने 7 को भी 4 से ही मल्टीप्लाई करना है। इसमें 4 3 से 12 होता है, तो हमें 3 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 इंटू 3, 3 3 से 9। अभी हमारा आ चुका है। इसको अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म तक रिड्यूस करेंगे तो हमें, अगर जैसे देखो इक्वल फ्रैक्शन मिल जाएंगे, राइट। अब सेकंड चीज़ करते हैं, सेकंड नंबर कौन सा था, 5/6 था, बड़ी लाइन इज इक्वल टू छोटी लाइन, ठीक है। ये 12 हो गया। 6 को क्या बनाने, 6 को 12 बनाने के लिए क्या करते हैं, यस 6 2 से 12, राइट। तो 6 इंटू 2 5 इंटू 2, इसको भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 10, ठीक है, 10, राइट। नेक्स्ट नंबर दिया है 1/12। 1/12 को 12 बनाने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, क्योंकि 12 तो 12 में है ही, तो हमें कुछ करना ही नहीं है। 12 इंटू 1, 1 इंटू 1 विच इज़ 12, राइट, ओ सॉरी 1, यस 1 इंटू 12। सो हमें सारे फ्रैक्शन हमने लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर दिए हैं, जिनके अगर हम रिड्यूस करते हैं तो भी हमें सेम ही मिलेगा, राइट। अगर मैंने इसको रिड्यूस करना चाहा, समझिए मैं इधर कर सकती हूँ, इधर कर रही हूँ आपको समझाने के लिए। 9/12 था, 10/12 था, ठीक है, 10/12 था और 1/12 था। 1/12 को तो करना ही नहीं है, 2 5 से 10, ठीक है, 2 6 से 12, 3 3 से 9, 3 4 से 12। आप देख सकते हैं कि हमने इसको जब वो किया है, रिड्यूस किया, तो ये सब डिफरेंट आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि हमसे कहा गया था हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करना है, लेकिन लिख हमारा जो डिनोमिनेटर होना चाहिए सब में सेम होना चाहिए। तो हमने डिनोमिनेटर करने के लिए हमने सबको वो किया, मल्टीप्लाई किया, और हमारा ये आ गया, ये आया विच इज़ दैट 9/12, राइट, 10/12 एंड 1/12, इन सबके डिनोमिनेटर सेम है, तो इट मीन्स दैट वी हैव कन्वर्टेड इनटू लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन मतलब डिनोमिनेटर सेम, राइट।
अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में दिया गया है हमें lowest form of fraction. To reduce a given fraction into lowest form, we divide both the numerator and denominator of the given fraction by the same number and continue dividing till the number and numerator and the denominator then does not divide further by the same number or the factor of the numerator and denominator. Obtain is one only, right? इसमें कहा गया हमें कि हमें करना है लोएस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन को। मैंने आपको पहले बता दिया लोएस्ट फॉर्म कैसे करना है, ठीक है। इसके लिए रिड्यूस द गिवन फ्रैक्शन 84 बाय 1/2 इनटू इट्स लोएस्ट टर्म, राइट। फर्स्ट चेक बाय विच नंबर बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड्स। हम इसे इस तरीके से कर सकते हैं, देखिए हमें दिया गया है एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 हमें ये दिया गया है reduce the given fraction 84 by 1/2 into its lowest form into its lowest term. First check by which number both numerator and denominator divides. कौन से नंबर से दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड सकते हैं। मैंने आपको कहा कि आप काट सकते हैं, ठीक है ना, काट सकते हैं। इन्होंने आपको इजी बताने के लिए और या अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए डिवाइड कर दिया। अब आपको ये पता ही होगा कि 2 जो होता है मतलब 84 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाता है, राइट, क्योंकि टेबल में आता है। तो हम ये अच्छे से पता, इसको करने की ज़रूरत नहीं होगी, हम ऐसे ही कर लेंगे। 2 4 ज़ा 8, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, ठीक है ना, 2 1 ज़ा 2। अब ये पता है कि 42 और 51 है। 42 51। अब आप देखा जाए, अगर आपने 3 का वो डिविजिबल वाली टेबल पढ़ी होगी कि 3 से कौन कौन से नंबर डिवाइड हो जाते हैं, तो आपको ये पता होगा कि 5 या कोई ऐसे नंबर दिया हो, जैसे कि 551 दिया है तो 5 + 1 6 होता है और 6 हमारे 3 की टेबल में आता है, तो इसका मतलब ये डिवाइड हो जाएगा 3 से, राइट। 4 और 2 दिया है, 4 में 4 और 2 ऐड करेंगे तो 6 आएगा। इट मीन्स दैट कि 6 आ रहा है और 6 3 की टेबल में आता है, तो इसका मतलब कि ये 3 की टेबल में आते हैं, तो हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 ज़ा 3 और 1 बचा 1 और 2 14, राइट। और यहाँ 51 दिया है, 51 कैसे जाएगा, 51 कैसे जाएगा, तो हम इसको करने के लिए क्या करेंगे बताइए। हाँ, 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 से डिवाइड करने के लिए 1 ज़ा 21, तो 3 7 ज़ा 21, सो हमारे पास आएगा 14 और 17, सॉरी हाँ यही आएगा, ठीक है, 14 डिवाइडेड बाय 17, ठीक है। तो 14 और 17 आपको पता है डिवाइड नहीं हो पाएंगे, किसी टेबल से डिवाइड नहीं होंगे, क्योंकि दोनों की ऐसी कोई टेबल ही नहीं है जिसमें 14 और 17 दोनों साथ में आता हो। तो ये हमारा लोएस्ट फॉर्म में लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है। देखिए इनका भी वही आंसर आ रहा है, 14/17। अब नेक्स्ट वाला हाँ, तो इसमें लिखा है 14/70 डज नॉट डिवाइड फर्दर बाय एनी कॉमन नंबर। अब हमें 14/70 मिल गया है जो किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, मतलब ऐसे कोई नंबर नहीं है जिसकी टेबल में 14 या 70 दोनों आता हो, यानी 17 की टेबल में भी 14 नहीं आता है, ठीक है। और तो सो 14/17 इज़ द लोएस्ट फॉर्म ऑफ 84 by 1/2, राइट। कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग फ्रैक्शन 1/2, 2/3, 5/6 इन ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटा, राइट। तो अब अगर हमें कहा गया दीज आर अनलाइक फ्रैक्शन सो मेक देम लाइक फर्स्ट। अभी हमने पीछे देखा कि कैसे हमने अनलाइक को लाइक में क्या था, इसी वे में हम लोग क्या करेंगे, जो कि डिनोमिनेटर दिए होंगे सबको एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके जो आंसर आएगा वो इसी फॉर्म में ऐसे हमने लिखा था, यहाँ पे लिखा था, हाँ यहाँ लिखा था, हमने ऐसे लिखा था, इस तरीके से लिखा था। एलसीएम लिया था, जो एलसीएम आया था 12, तो हमने 12 लिख के सबको इसी तरीके से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज किया था। जब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गए थे तो हमने इसको लिख दिया था। लेकिन अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना होगा तो हमें, अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो हमें बस न्यूमरेटर देखने हो, तो न्यूमरेटर करने के असेंडिंग में क्या होता है, छोटे से बड़ा होता है, राइट, छोटे से बड़ा होता है। तो सबसे छोटा नंबर 1 होगा, फिर 9 होगा, फिर 10 होगा, ठीक है। ऐसा अगर डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा, तो 10 फिर 9 फिर 1। आपको डिसेंडिंग असेंडिंग का पता होगा ही, तो ये पता होना ज़रूरी है, तभी आप क्वेश्चन को सही से सॉल्व कर पाएंगे। सो
हाँ, तो अब जैसे कि हमें इसमें दिया है, हमें देखिए कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग फ्रैक्शन। तो अगर मैं इसमें कहा गया हमसे क्वेश्चन में कि अरेंज करना है 1/2, 2/3 और 5/6 या 5/6, ठीक है। अब इसे हमें करना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग मैंने बताया छोटे से बड़ा, राइट, छोटे से बड़ा होता है, ठीक। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें इसका फ्रैक्शन लेना है, क्योंकि अगर हमने बताया कि डिनोमिनेटर हमारे सेम है, अगर आपने देखा डिनोमिनेटर सेम है तब तो फिर कोई बात ही नहीं है, तब तो हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आसानी से कर लेंगे। लेकिन अगर हमें जैसे इसमें दिया है डिनोमिनेटर हमारे डिफरेंट है, तो अब हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। मोस्टली आपको डिनोमिनेटर जितने भी क्वेश्चन दिए होंगे डिनोमिनेटर सेम हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। आपको करना पड़ेगा 2, 3, 6 एलसीएम लिया, प्लीज़ कॉमन मल्टीपल 2 1 जा 3 ऐसे ले लेंगे, 2 3 जा, सॉरी 3 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, सॉरी 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा। तो 2 × 3 विच इज 6, राइट। तो 1/2 7 सॉरी 2/3, हाँ यहाँ 2/3 आएगा, 5/6 आएगा, इज इक्वल टू छोटी लाइन इज इक्वल टू बड़ी लाइन इज इक्वल टू छोटी लाइन, बड़ी लाइन इज इक्वल टू छोटी लाइन, बड़ी लाइन इज इक्वल टू छोटी लाइन, ठीक है। अब इसको 6 करो, 6 करो, 6 करो यहाँ पे, क्योंकि जो हमारा वो आया है वही हमारे साथ में डिनोमिनेटर हो जाएगा एलसीएम जो आया है। अब हमें 6, अब पता है कि 6 को 6 में डिवाइड, मतलब 6 को 6 में बनाने के लिए क्या करते हैं, 6 तो नॉर्मल 6 में ही है, तो हमें कुछ करना ही नहीं है, 6 × 1 कर देंगे। अब जिससे हमने डिनोमिनेटर से हमने किया है मल्टीप्लाई, जिस डिनोमिनेटर से किया है उससे ऊपर वाला न्यूमरेटर भी कर देंगे, 5 × 1 5 हो जाएगा। 6 है तो 3 को 6 बनाने के लिए 2 से करेंगे, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 होता है, तो 2 को भी उसी से कर देंगे, 2 × 2 4 हो जाएगा, ठीक है। हमें इससे नहीं ये करना है, याद रखिएगा, इससे नहीं, जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बनाने के लिए 6, उससे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 2 2 जा 4, यानी कि न्यूमरेटर को उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा 2 × 3 6 और 1 × 3 3, राइट। हमारे पास आ गया 3/6, 4/6, 5/6, जिसके डिनोमिनेटर हमारे सेम है, इक्वल है, ठीक है ना। अब हमें कहा गया है कि इससे हमें असेंडिंग ऑर्डर यानी कि छोटे से बड़े में करना है। अब हमारे पास डिनोमिनेटर आ गया तो आसान हो गया है, इक्वल है, सारे सेम है, तो हमें कुछ नहीं करना है। हमें अब नॉर्मल जैसे असेंडिंग ऑर्डर करते हैं वैसे कर देंगे। असेंडिंग में छोटे से बड़ा होता है, जैसे छोटा नंबर कौन सा है 3/6, फिर 4/6 और 5/6, तो वैसे ही दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, अभी आपको इसको इसके ओरिजिनल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। जैसे 3/6 को हमने 1/2 को हमने जैसे किया था ना, इस फॉर्म में 3/6 में किया था, तो अब आपको 1/2 लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद 4/6 दिया हुआ है, ठीक है ना, छोटे से बड़ा कर रहे थे, 4/6 दिया था, अब 2/3 कर देंगे, 5/6 दिया था, 5/6 कर देंगे, राइट। ऐसे करना होगा, ओके। हमें अगर आपने ओरिजिनल नंबर में नहीं लिखा तो पॉसिबल हो सकता है कि आपको 1 मार्क्स कट हो जाए, राइट, आपका 1 मार्क्स कट हो सकता है। तो इसको करने के लिए अगर आपने ऐसे तरीके से किया और उसके बाद आपको क्या करना है कि देखिए दिखाती हूँ, हाँ, आपने असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया था और यहाँ पे ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये असेंडिंग ऑर्डर में हो चुका है। इसी वे में आप डिसेंडिंग ऑर्डर भी कर सकते हैं। बस ये याद रखिएगा कि आपको ओरिजिनल फॉर्म में चेंज करना है, आपका आंसर यहाँ पे फिनिश नहीं होगा, ओके। सो ये हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियो थी, इसमें से मैंने आपको सारे टॉपिक्स एक्सप्लेन कर दिए हैं, किसको किस में चेंज करना है, कैसे कन्वर्ट करना है, और जितने भी एग्जांपल्स थे सब हमने टेक कर लिए हैं, एकदम सॉल्व कर लिए हैं, और रियल लाइफ एग्जांपल्स बता दिए आपको। So here comes the end of the video. If you like my channel, please like, subscribe and share, and don't forget to click the bell icon. Okay, we'll meet you in the next video, and next video will be our exercise video in which we'll be solving the exercises, right? So bye.